कैसे सुने. सो आई थिंक सो के वी ऑल रियली वांट कि हमारे पास, आपको पता है क्रिस्टल बॉल जो होता है उससे क्या कहते हैं, कि क्रिस्टल बॉल्स में हम वो देख सकें कि फ्यूचर में क्या है, और फ्यूचर से हमें पता लग जाए कि फ्यूचर में कैसे होगा, तो हम उसके मुताबिक अपना फैसला जो है वो आज करें इन द प्रेजेंट. सो बिफोर आई गो इन दिस sermon, I just ask, I go to many places and people, they tell me that they really enjoy my sermons, and they really feel that the God and the Holy Spirit is speaking through this congregation. And if you are listening online, and if you really feel that you really enjoy the service of this church, so it means God is speaking to you to come and join with this congregation, to come and give us a hand, what God has put on our hearts, and where God wants to take us. So if you really enjoy it, you like it, so then become a part of this mission. Otherwise, I do not want to ask anyone, if you are with some church and you are just like God is just blessing you through that church, fine. But if you really believe that God is blessing you through our sermons, through this congregation, then come and join us. This is the way God is speaking to you. So let's go back to the sermon, कि कैसे आपको पता लगे कि आपके डेली डिसीजंस में कि खुदावंद की आवाज़ को आप कैसे सुन सको. नाउ आपको पता है कि जो फ्यूचर टेलिंग है, फॉर्चून टेलिंग इंडस्ट्री है अमेरिका में, इट्स ओवर $3 billion ओनली इन अमेरिका. $3 billion से ज़्यादा जो है लोग इस बात पे खर्च करते हैं कि हमें फ्यूचर का कैसे पता लगे. आपने देखा कभी हॉरोस्कोप देखते हैं लोग? मैंने आपको बताया कि इट्स नॉट गुड. आई नो यू गाइस, नन ऑफ यू हियर you watch horoscopes. None of you here goes to the fortune tellers. None of you here, I mean, if you want, you can go back to my sermon and you can revisit it. What did I say? Because I do not want to revisit that sermon again. But it's over $3 billion people they spend only in America. I'm not talking about Canada, Europe. Think about all over the world. कितनी बड़ी इंडस्ट्री है सिर्फ इस बात को पता लगाने के लिए कि हमारा फ्यूचर कैसा होगा. नाउ अगर आप देखते हो, why are so worried about the future? Why? Because we are worried about the future because हमें इस बात का फिक्र रहता है, इस बात का डर रहता है कि आज मैं जो फैसला कर रहा हूं या कर रही हूं, वो फैसला आने वाले दिनों में मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा ना कर दे. और मगर एट द सेम टाइम यू वांट टू मेक दैट डिसीजन, क्योंकि आप उसी डिसीजन मेकिंग की वजह से आपको होप होती है, उम्मीद होती है कि आप खुदावंद आपके लिए कोई काम करेगा. सो इट्स जस्ट लाइक व्हेन यू मेक अ डिसीजन इन योर लाइफ, सो यू आर काइंड ऑफ इन द क्रॉस रोड्स वेयर यू आर पजल कि मैं देखूं कि खुदावंद का ये जो फैसला है वो मेरे वास्ते ठीक है या नहीं. खुदावंद क्या कहता है? सबसे ज़्यादा बात ये होती है कि हम ये सोचते हैं कि खुदावंद की इसमें मर्जी है कि नहीं. एज फॉलोअर्स ऑफ द वर्ड ऑफ क्राइस्ट, फॉलोअर ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, वी जस्ट हैव दिस बिलीव इन आवर हार्ट कि वो जो खुदावंद मेरे लिए कर रहा है, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा कर रहा है, बिकॉज इट्स रिटन कि खुदावंद आपको whatever you do, he does not harm you but prosper you, right? Jeremiah. The same way in the Old Testament we see कि जब बादशाह जो थे वो जंग पे जाते थे, so they just want to know what will happen. Same dilemma, same problem. That was a little bigger decision making, but now this is a small decision making in our daily lives. As a matter of fact, मैं Dallas Baptist University में, I'm still an adjunct professor at Dallas Baptist University, but since COVID, so I'm not teaching there as regularly as I was before COVID, but I was just teaching the decision making class. That's called the quantitative analysis. That's what I teach at university. But decision making में किंग क्या किया करते थे? वो बुलाया करते थे प्रॉफिट्स को या एस्ट्रोलॉजर्स को टू सी
कि वो अगर जंग में, इवन टुडे इट हैपन्स, इवन टुडे, I mean if you really just want to see what happens when those big empires, even in America, when I mean we saw this on the news couple of times, when kings they go, or even the हमारे जो presidents they go for the war, they ask the pastors to come and pray for them. We all do this, we all see this happening in the White House, right? So उस वक्त भी ऐसे किया करते थे, वो बुलाते थे उन्हें और बुलाते थे और कहते थे कि खुदावंद से कंसल्ट करके बताओ कि if this decision is good or not. Now the problem what's happening in our daily culture, it is even worse. हमने क्या किया कि एस्ट्रोलॉजर्स को पकड़ के हमने चर्च में ले आए हैं और हमारे बहुत सारे पैस्टर्स एस्ट्रोलॉजर्स बन गए हैं, isn't it? हमारे जो पैस्टर्स हैं, हम अगर I'm not going to name the name, but somebody just put the flyer not long ago कि हमारे यहाँ पे prophecy service हो रही है, prophetic service. I said, what is that? What does prophetic service mean? I couldn't figure it out from the Bible. And the other day I just met someone and the guy, he said, oh, remember you just questioned that prophetic service. He said you did good job. But I said, why didn't you second me on it when I did it? But the thing is this, we have brought those astrologers in our church. अगर आज मैं कह दूं ना यहाँ पे कोई prophetic service हो रही है हमारे चर्च में, तो आप देखना कितने लोग यहाँ पे चर्च में आ जाएंगे कि वो सिर्फ जानने के लिए कि फ्यूचर में क्या हो रहा है. The same problem with the kings. And we see our 3 बरस, this is 1 Kings chapter number 22 for online people, verse 1 through 35. I do not have time to go throughout 35 verses, but I will summarize the whole thing. But if you just want to read it for yourself, it's very beautiful and it tells the problem we have on hand nowadays. 1 Kings chapter number 22 verse 1 through 35. और 3 बरस ऐसे ही रहे, इस्राएल और अराम के दरमियान लड़ाई ना हुई. और तीसरे साल यहूदा का बादशाह यहोशाफात शाह इस्राएल के पास आया. Jehoshaphat in English came to Shah Israel, the king of Israel, और उसके पास आया और अपने मुलाज़ों का क्या तुम्हें मालूम है कि रमात जिलाद हमारा है. They knew this, that is their place, but it was taken over by the enemies. और उसने कहा कि क्यों ना हम जाके वो जो जगह हमारी ही है उसे वापस लाएं. और उन्होंने कहा कि हम क्या करते हैं, दोनों बादशाह जो हैं अपनी एम्पायर्स मिलाएं और जाके we just go and attack and we take our territories back. That is the plan going on here. Then what happened? What happened? They said कि before हम ऐसा करें, क्यों ना before ये decision make करें, इस decision make करने से पहले हम जो है वो तमाम लोगों को, खुदावंद के लोगों को बुलाएं और उनसे पूछें कि क्या हम ये जो करेंगे, जैसा कि हम रोज की मरा जिंदगी में भी हमारा ऐसा ही है कि इज दिस ट्रू और नॉट, शुड वी टेक दिस स्टेप और नॉट. व्हाट हैपेंड, उन्होंने तमाम जो थे वो जो लोगों को उन्होंने बुलाया, बट उन्होंने कहा कि वहाँ पे एक माइका नामी प्रॉफिट था. उन्होंने कहा कि बादशाह ने कहा कि वाई नॉट वी कॉल, जो माइका नामी प्रॉफिट है उसे भी बुलाएं. और वो जो बादशाह वो कहता है कि जब भी वो आता है तो वो मेरे खिलाफ ही प्रोफेसी करता है, उसे ना बुलाओ, अच्छी प्रोफेसी करने वालों को बुलाओ. अभी आपने देखा कि चर्च में कभी आपने देखा है कि वो जो पैस्टर जो प्रोफेटिक सर्विसेज करते हैं वो कभी आपको बुरी खबर देंगे, कैसे होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाउ कैन यू सी इफ दैट प्रोफेसी इज फ्रॉम गॉड, व्हाट दे आर टेलिंग यू इफ इट्स फ्रॉम गॉड और नॉट. मैंने आपको 3 चीजें बताई थी, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर इट और नॉट. मैंने आपको बताया था कि जब कोई प्रोफेटिक सर्विस आप जाओ, कभी आप ओवरवेल्म हो जाओ फ्यूचर के पता करने में और पादरी साहब के पीछे भागे जाओ, तो उनसे 3 चीजें जरूर पूछो. पहली चीज उनसे ये पूछो कि अगर होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है तो मुझे ये जरा डिटेल में मुझे खुशखबरी बता दे, क्योंकि बाइबल के मुताबिक नंबर मैंने आपको पहले ये बताया था. दूसरा मैंने आपको ये बताया था कि अगर वो खुशखबरी, वो सबको खुशखबरी दे रहे हैं तो वो प्रोफेसी नहीं है. और देन मैंने आपको, आई जस्ट वेंट इनटू लिटिल बिट मोर डिटेल, आई जस्ट वांट यू टू गो बैक इन दैट सर्मन. बट
क्या होता है कि वो जो तमाम जो अच्छी चीजें बता रहे हैं, फर्स्ट किंग्स चैप्टर नंबर 22 वर्स 1 और 35 में वो ये कहते हैं कि वो जो है वो बैड स्पिरिट के थ्रू ऐसा कर रहे हैं। माइका जब आता है, आई वॉन्ट यू टू रीड थ्रू इट, आई डोंट हैव टाइम। वो कहते हैं कि वो जब सी कि वो बैड स्पिरिट इज अपॉन देम एंड दे आर प्रोफेसाइंग इट थ्रू द बैड स्पिरिट, ताकि वो बादशाह जाके उस जगह पे फंस जाए। बट वो माइका कहता है कि ऐसा होगा कि तू जो है उस जो लड़ाई में वो मारा जाएगा। देन वो फिर वो जाते हैं और वो क्या होता है एट द एंड, वो बादशाह क्या होता है, ही जस्ट वो तीर जो है उससे लगता है। एंड इट्स रिटन, इट्स इन वेरी ग्राफिक वे, इट्स रिटन एट द एंड, इफ यू सी, आई जस्ट वांट टू रीड एट द एंड। क्या होता है कि और उस दिन बड़े घुस्मान का रन पड़ा। दिस इज द डिसीजन मेकिंग ही मेड ऑल विद द रन पड़ा, और उन्होंने बादशाह को उसके रथ में ही अरामियों के मुकाबले संभाले रखा, और शाम को वो बादशाह मर गया और खून उसके जख्म से बहकर रथ के पायदान में भर गया। Then you see the decision making when the prophet of the God, he is not worried about your money when he comes at the church, that how much offering or tithing you're going to give him, because if he is not, so जो माइका था उसे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। It's the same way we see कि King Saul, that's another example. King Saul वो जब जाता है फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए, एंड ही हैज़ टू सी, ही हैज़ टू मेक अ डिसीजन, और ही जस्ट वांट टू सी इन द फ्यूचर कि फ्यूचर में क्या होगा, ताकि मैं उसका डिसीजन उसके मुताबिक ले सकूं। तो क्या होता है, वी नो दिस स्टोरी, एंड इफ़ यू वांट, आई डू नॉट हैव टाइम, आई एम जस्ट गोना गो वेरी जस्ट टच बेस इट। फर्स्ट सैमुएल चैप्टर नंबर 28 6 through 19। और जब साउल ने खुदावन से सवाल किया तो खुदावन ने ना तो उसे ख्वाबों में और नबियों के और ना ही नबियों के वसीले से उसे जवाब दिया। नो आंसर फ्रॉम गॉड। तब साउल ने अपने मुलाजिमों से कहा कि कोई ऐसी औरत मेरे लिए तलाश करो कि जिसका आशना जिन हो। दैट्स, अभी मैं आपको ये सरमन दे रहा हूं, मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूं, अभी आपको कोई पता लग जाए कि कोई बड़ा ज्योतिषी आया है, सो यू विल बी टेम्प्टेड टू गो एंड आस्क हिम। पादरी साहब बता रहे हैं सब कुछ, फिर भी यू आर टेम्प्टेड टू गो एंड आस्क कि मेरे घर बेटा होगा या बेटी होगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर मैं ये स्टेप लूं तो क्या होगा। वो आपने देखो वो क्रिकेट टीम जो अभी पीछे कुछ क्रिकेट मैचेस हुए, तो वो इंडिया की क्रिकेट टीम थी, और वहाँ के जितने भी ज्योतिषी थे, इस वक्त कपल ऑफ ईयर्स अगो, इफ यू गूगल इट यू कैन फाइंड व्हाट आई एम टेलिंग यू। तो इट वाज अ वेरी जो था वो चार्जिंग मैच है इंडिया का, आई डोंट नो पाकिस्तान के खिलाफ, आई इवन फॉरगॉट, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वन और द अदर। तो वो इंडिया के बहुत सारे ज्योतिषी इकट्ठे हुए वहाँ पे, और उन्होंने बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे होगा ऐसे होगा और इंडिया आखिर में जीत जाएगा। और क्या हुआ कि इंडिया बुरी तरह से हार गया। वो बुरी तरह से हार गया इंडिया। और फिर बाद में मीडिया ने उसको पकड़ा और वो कहने लगे कोई ये जो ज्योतिषी आप सब इनके पीछे भागे फिरते हो, देखो वो क्या हुआ। मगर फिर भी लोग इतने दीवाने हैं। डू यू थिंक पीपल वुड स्टॉप गोइंग टू दोज ज्योतिषी? वो फिर भी जा रहे हैं। पीपल दे आर सो फुलिश। और इसी तरह साउल, पहले तो उसने वो जो तमाम फालगीर थे, जो इसी तरह ज्योतिषी थे, उन सबको मार के भगा दिया वहां से, क्योंकि ही न्यू कि दिस इज द अबॉमिनेशन। गॉड रियली डिटेस्टेड। खुदावंद को इस बात से सख्त नफरत है कि आप फ्यूचर फॉर्चून टेलर्स के पास जाओ। इट्स रिटन इन द बाइबल। बिकॉज व्हाई? बिकॉज इट मीन्स यू डू नॉट हैव अ फेथ इन गॉड, यू हैव अ फेथ इन समथिंग एल्स। तो क्या होता है कि जब वो उसके पास जाता है तो वो औरत, वो कहती है सॉल को, वो चलाती है, वो कहती है कि तूने तो वो सबको मरवा दिया और अभी तू ही ऐसी बात वो मुझसे पूछने आ रहा है। वो कहता है, वो खुदा की कसम खा के उससे कहता है कि मैं तेरे साथ किसी किस्म का जो प्रॉब्लम नहीं होगी। व्हाट हैपन जब सैमुअल आता है तो सैमुअल उससे कहता है, उसे क्या कहता है, उसे डिसीजन में क्यों क्या कहता है, उसे वो कहता है कि आज ही जब तू जाएगा तो तू मेरे साथ, आज या कल वो लिखा है कि तू मेरे साथ होगा और तू और तेरे बेटे जो जंग में वो मारे जाओगे। And it happens that way. Why? Because he has no faith in God. He's just like scared of Palestine. वो फलस्तीनियों से तो डरा हुआ है। हम भी जब अपनी डिसीजन मेकिंग करते हैं, पहली बात तो हम वैसे ही डरे होते हैं। कोई भी मैंने आपको मैं बताता हूँ अपनी, sometimes you know I just have made those decisions कि even के मेरे अपने घर वाले वो मेरे साथ नहीं थे।
वो मुझे वो कहने लगे कि ये कैसा डिसीजन आप कर रहे हो। तो बट देन आई जस्ट सेड यू नो कि जब खुदावंद ने पहले दे दिया तो अब भी दे ही देगा। So I know I do not have time to go in through those decision makings, and I do not want to bring my home in the sermon at the same time, but I do make those decisions. I say खुदावंद करेगा और खुदावंद कर देता है, और अगर नहीं भी करेगा तो फिर क्या हो गया? तो फिर क्या होगा? मैं तो फिर भी आप शादमानी हो खुदावंद में। जरूरी है कि अगर आपको खुदावंद जो आप चीज चाहते हो वो देगा तो आप शादमान हो गए खुदावंद में। अगर खुदावंद आपको जो बात वो जो आप मांग रहे हो अगर वो नहीं देता तो फिर भी अगर आप खुदावंद में पेवस्त हो, अगर आप खुदावंद पे फेथ रखते हो, तो जो आप मांग रहे हो अगर खुदावंद आपको नहीं दे रहा तो वो आपके लिए गुड है। दैट्स विद दैट फेथ एंड बिलीव जस्ट कीप वॉकिंग इन लाइफ। मैं आपको बताता हूं, देयर आर सो मेनी थिंग्स व्हेन आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द वेरी रफ एंड टफ टाइम्स इन माय लाइफ, and I was just even wondering, you know, where is God? I was just going through so many rough times in my life, and now when I just like look back and then I see कि वो जो rough time जो खुदावंद मैं सोच रहा था कि वो rough time है, खुदावंद ने उस rough time को मेरे वास्ते blessing में बदल दिया। Just believe, even in the rough time. जरूरी नहीं कि बड़ी अच्छी कोई बात हो रही है कि जी बड़े शादियाने वजन देने ते धूते वजन देने ते फिर ही तुसी कहंदे हो कि आपने जो डॉलर डाला है तो उस डॉलर से खुदावंद ने आपको कोई $20 काट दिते ने ते फिर ही तुसी कहंदे हो जी बड़ी तुसी मैं स्तुति गावांगा खुदावंद दी। Good times or the rough time, wherever you are going, the faithful servant of the Lord, he is praising the Lord. Isn't that what we see in the Bible? That's exactly what is now. Every time, if you just want to make the decision in life, my brothers and sisters, we have the finished work of Christ in our hand, the Bible. Consult the Bible in your decision making. This is the number one tip for you all, and for me and for the people who are listening online, who will be listening online. The first tip is just consult the Word of God. Now, 1 Corinthians, or then other thing, just believe this, कि जहां भी जाशुआ से वो कह रहे हैं, खुदावंद कह रहे हैं, जाशुआ चैप्टर नंबर 1 वर्स 3 में कहता है, जिस जगह तुम्हारे पांव का तलवा टिके उस जगह को मैं क्या कर दूंगा? ब्लेसिंग में चेंज कर दूं। बिलीव दैट। परेशानी काहे की बात है? नहीं भाई साहब तुहानू पता कोई नहीं, पता किस गल दा नहीं है। जस्ट बिलीव दैट। खुदावंद उससे ये जाशुआ से ये कह रहा है कि फलानी जगह पे जाएगा तो तू ऐसा होगा। हम ये सोचते हैं, वैसे हम आप ये कहोगे कि हम खुद अमेरिका में आ गए हैं तो फिर इस तरह से, जरूरी नहीं, आप किसी जगह पे, पाकिस्तान में भी आपको खुदावंद ब्लेस कर सकता है। हम ये सोचते हैं कि पता नहीं हम अगर इंडिया से या पाकिस्तान से वीज़ा ला के अमेरिका दे आके असी बह जाएंगे तो इतने ब्लैसिंग बैठी हुई है। खुदावंद ने ऐसी बात मैंने तो कहीं नहीं देखा ऐसा बाइबल में, अगर है तो मुझे निकाल के बताइए, मुझे पता कोई नहीं। फिर खुदावंद तो कहते हैं कि जिस जगह पे तेरा तलवा टिकेगा उस जगह को मैं क्या कर दूंगा? ब्लेस कर दूंगा। तो तलवा तो आपका भावें थोपिया से जाके टिके, भावें सोमालिया से टिके, खुदावंद उस जगह को भी आपके लिए ब्लेसिंग बना सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिसीजन मेकिंग में बात यह नंबर 1। नंबर 2, 1 Corinthians चैप्टर नंबर 15 54 to 57, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही? ए मौत तेरा डंक आ रहा। मौत का डंक गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र जो हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है इन एवरीथिंग। बस ए मेरे अजीज भाइयों क्या करो? स्टेडफास्ट, साबित कदम रहो, साबित कदम रहो और कायम रहो और खुदावंद के काम में हमेशा अफसाइश करते रहो, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारी मेहनत जो कुछ भी तुम करते हो खुदावंद के लिए जो कुछ करते हो वो ओके। सो डिसीजन मेकिंग, व्हाटएवर यू आर डूइंग, इफ यू आर डूइंग इट for the Lord, for the kingdom of the Lord in your decision making, then steadfast, साबित कदम रहो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जो भी डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, if you are saying you are making the decision
फॉर द किंगडम ऑफ द लॉर्ड, आपने खुदावंद को सामने रख के कर रहे हो बजाय कि अपनी विकेडनेस को, इट्स अ गुड डिसीजन। देन साबित कदम रहो, स्टेड फास्ट इनटू इट, डोंट वरी कि क्या होगा तो क्या नहीं होगा, फिर उसको देन यू डू इट। हाउ डू यू नो कि इट इज फ्रॉम द गॉड? खुदावंद ने आपको टैलेंट्स दे रखे हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया कि द वर्ड ऑफ गॉड, बाइबल इज द वर्ड ऑफ गॉड इन द डिसीजन मेकिंग। नंबर 2, खुदावंद ने आपको टैलेंट्स दे रखे हैं। इट्स रिटन, आज की तिलावत में हमने पढ़ा मैथ्यू चैप्टर नंबर 25, सी व्हाट गॉड इज सेइंग टॉकिंग टू अस। क्योंकि ये उस आदमी का सा हाल है जिसने प्रदेश जाते हुए हम घर के नौकर को बुलाकर उनका माल उनके सुपुर्द कर दिया, और एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। 5, 2 और 1 तोड़े। Do you, God has given you any talents? I'm asking you all, to myself too, and the people on the line. Do you think God has given you some talents? He did. 5 दिए हैं, I do not know, 2 दिए हैं, आपको 1 टैलेंट दिया है। जो कुछ खुदावंद ने आपको टैलेंट दे रखा है, जो आप डिसीजन मेक करते हो लाइफ में, then look at your talent, कि आपको खुदावंद ने उस डिसीजन मेकिंग में उसके हिसाब से टैलेंट कितना दे रखा है। जो कुछ खुदावंद ने अगर आपको उसके मुताबिक टैलेंट दे रखा है, तो फिर आपको उस टैलेंट को यूज करना है। अगर आप उस टैलेंट को यूज नहीं कर रहे, अगर आप आके सिर्फ चर्च में आप आते हो और चले जाते हो, टैलेंट को, मैं जरूरी नहीं कि आप चर्च में कुछ करो, मे भी खुदावंद आपसे किसी और तरीके से काम ले रहा है, आई डू नॉट नो, किसी भी तरीके से खुदावंद के लिए इस्तेमाल जरूर हो। अगर आप उस टैलेंट को फर्स्ट ऑफ ऑल सी इफ वॉट एवर इन योर डिसीजन मेकिंग, अगर आप ये डिसीजन मेक करना चाहते हो कि मैं ऐसा नहीं ऐसा करना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेक द सी what kind of talents God has given you. If God has given you talents, so it's definitely whatever you're doing, God will multiply it. Don't worry then. Then stick with it. आपको नुकसान हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, then with this faith keep moving forward. कि खुदावंद जो है अपने वचन के मुताबिक, अपने प्रॉमिस के मुताबिक, अपने वादा के मुताबिक उस टैलेंट को क्या कर देगा? मल्टीप्लाई कर देगा। Keep using your talents. और अगर खुदावंद ने आपको टैलेंट दे रखा है, and if you are not using it for the kingdom of God, I know everyone who is sitting here, I see you guys using it, but if you're not using it for the kingdom of God, my brother and sister, I'm sorry to say this, if you see towards the end, God is calling him, Jesus is calling him a wicked servant. That is a very bad place to be at. He said, वो कहते हैं कि मैंने इस डर से कि मैं जो तुम्हें तोड़ा देता कि तो गुआच ना जाए, कभी कभी होता है ऐसे हमारे साथ, मैं इस डर से, कहते हैं मैंने उससे छुपा के रख दिया, कहते हैं ये ना हो कि उसे तोड़े गुआच जाए मेरे को। कभी कभी हम ऐसा होता है, वो कहते हैं कि अगर ऐसा था तो तूने कम से कम बैंक के साथ रख के और उसका सूद ही ले लेना था। हम किसी इसी वास्ते डर के मारे नहीं करते, कहते हैं कि यार है जब मैं स्टेप लवांगा ना तो पता नहीं क्या होगा, ये जो कुछ मेरे पास है वही ना गुम हो जाए। Then we are not working in faith, we are working in what? Fear. And who was working in fear? Saul. Who was working in fear? जो था शाह इस्राएल था। They are all working in fear. And now God forbid, we just come in their line. And then we are working the same way. Because this is not, because there is a very different, what is fear? Fear is doubt. जब आप किसी काम करने से पहले आप डाउट में रहते हो, तो what is that? Doubt is what? A fear. What is faith? No fear. Because you know कि God is with me, और या वो कहते हैं कि या तो तू ये बिलीव करते हैं God is with you, or if you believe it, God is not with me. If you believe that God is not with you, then make the decision according to the fear. Please do that then. I just tell you, just then go ahead, take that decision making. अगर तो आपको इस बात का पता लग गया कि खुदावंद आपके साथ नहीं, then okay, then make that decision.
बट अगर ये कहते हो, आप कहते हो कि बाइबल मेरे हाथ में है, पूरी बाइबल तो रंगी हुई है काले पीले नीले कलमां दे नाल, देन आप कहते हो कि बाइबल खुदावंद मेरे साथ है, तो फिर अगर आप डर से बात कर रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। यू सी व्हाट आई एम सेइंग नाउ। व्हाट इफ मैं कोई बात करना चाहता हूं और आई फील कि मैं तो वीक हूं, मेरी वीकनेस जो है मैं इस डिसीजन मेकिंग में, फर्स्ट किया कि आप डिसीजन मेक करना चाहते हो लाइफ में किसी बात का, और आप ये सोचते हो कि इस डिसीजन मेकिंग में आप कहते हो कि मेरे पास तो ये टैलेंट है ही नहीं, खुदावंद ने तो मुझे ये टैलेंट दे ही नहीं रखा। शुड यू गो अहेड एंड डू इट और नॉट? यस, इफ यू ट्रस्ट इन द गॉड, लुक एट द एग्जांपल ऑफ मोसेस। अगर आप देखते हो कि एक्सोडस चैप्टर नंबर 4 10 through 14, तब मूसा ने खुदावंद से कहा है, खुदावंद मैं फसीह नहीं, ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया उस वक्त भी नहीं हूं, बल्कि क्या करता हूं मैं तो रोक रोक के बोलना, रुक रुक कर बोलता हूं और मेरी जुबान कुंद है। तब खुदावंद ने उसे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है? आपकी वीकनेस किसने बनाई है? और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूं ये नहीं करता? If you want to make, if in your decision making, अगर आप कोई डिसीजन मेक कर रहे हो अपनी लाइफ में and you put God first in your decision making, खुदावंद को आप पहले रख रहे हो, आपकी वीकनेस खुदावंद किस में चेंज कर देगा? स्ट्रेंथ में। खुदावंद ने उसकी वीकनेस को किस में? स्ट्रेंथ में। उसने कहा कि तू फिक्र ना कर, मैं क्या करूंगा, तू जा, तू उससे बात कर, तो हारून जो है वो तेरी क्या बनेगा? तू जुबान तेरी बनेगा। और कहता है कि मैं हारून के ऊपर तुझसे कैसे, वो जिस तरह खुदावंद उससे बात करता है, उससे खुदावंद आपको, आप कोई भी आप बात कर लो, अगर आप खुदावंद के लिए कर रहे हो तो वो डिसीजन मेकिंग क्या बन जाएगी आपकी? खुदावंद आपके साथ किसी ना किसी को मिला देगा कि अगर आप खुदावंद के लिए काम करते हो तो आप कि जो वीकनेस भी है वो खुदावंद उसको कवर कर देगा किसी की स्ट्रेंथ से, ताकि आप खुदावंद की किंगडम के लिए काम कर सको। यू सी आई एम सेइंग, आई एम नॉट सेइंग दिस फ्रॉम माई सेल्फ, आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फ्रॉम वेयर? फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, एंड वी ऑल बिलीव इन दिस। डू यू बिलीव इन द वर्ड ऑफ गॉड? यस, सो आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड। सो it's written, Romans chapter 14 and 8, if we live, we live to the Lord. जिंदा हो तो खुदावंद के लिए। If we die, we die to the Lord. So whether we live or die, we belong to the Lord. If you really believe that you belong, do you belong? Do I belong to the Lord? Do we belong to the Lord or not? Okay, so if you really believe this in your heart that you belong to the Lord, then in our decision making, why are you worried about? Then make the decision. राइट और रॉन्ग, क्योंकि वो लिखा है कि वो गलत डिसीजन को भी वो ठीक कर देता है राइचियस पर्सन के लिए। मैंने अपनी लाइफ में बड़े बेवकूफ़ी के डिसीजन मैं कहता हूँ कभी कभी किए हैं, मगर मैंने वो देखा है कि वो खुदावंद ने जो मैं वो बेवकूफ़ी के डिसीजन खुदावंद ने इतना अच्छा कर दिया कि मैं खुद परेशान हो गया कि ये कैसे हो गया। यू नो, सो खुदावंद आपके जो आप ये सोचते हो, इफ यू आर इन द लॉर्ड, कर गुजरो। खुदावंद ने जो आपको लाइफ दी है फॉर हिज किंगडम, जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। नाउ व्हाट इज द टेक अवे फ्रॉम टुडेज सर्मन? हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता है कि जो आप डिसीजन मेक कर रहे हो वो खुदावंद की तरफ से है या नहीं? नंबर 1, खुदावंद ने हमें अपना वर्ड दे रखा है, बाइबल। कंसल्ट द बाइबल। नंबर 2, जस्ट गो चेक आउट योर टैलेंट्स, कि खुदावंद ने आपको इसका टैलेंट दे रखा है। दिस इज द वॉइस ऑफ गॉड। Simple, very simple litmus test. Do not follow the false prophets, my brothers and sisters. Do not just run after those fortune tellers. I'm sorry to say this, don't even run after the fortune teller pastors either. You know, maybe some people, they just have a problem with my statement. But still, if somebody just come, मगर आप रूहों को क्या करो? जांचो जरूर। पागला तरह ने मुंह चौक के भज्जे फिरो, जांचो रूहों को, क्योंकि आपके पास जो खुदावंद ने, जब आप कहते हो कि आपको बाइबल तो खुदावंद ने आपके पास दे रखी है आपको, फिर आपको भागने की क्या जरूरत है? आप परेशान हो किसी बात के लिए? किस बात के लिए परेशान हो?
If you know कि whatever you live or die, you're dying, living or dying from the Lord and you belong to the Lord, then फिर किस बात की परेशानी? अमेजिंग जो मिरेकल्स है ना, हम अपनी लाइफ में सिर्फ इस वास्ते मिस कर देते हैं क्योंकि वी आर नॉट फॉलोइंग अवर, हमारे पास जो टैलेंट्स खुदावंद ने, हमारे पास इतने मिरेकल्स हमारी लाइफ में हो, माय ब्रदर एंड सिस्टर्स, पता है हम मिस कैसे क्यों कर देते हैं? बिकॉज अपने डर की वजह से। हम डर की वजह से उन मिरेकल्स को मिस कर देते हैं क्योंकि हम अपने टैलेंट्स को यूज ही नहीं कर रहे हैं। और हम अब जब अपने टैलेंट्स को आप यूज नहीं कर रहे तो आप क्या कर रहे हो? आप उन मिरेकल्स को अपनी लाइफ से क्या कर रहे हो? आपने बंद कर रखा है क्योंकि आप तो वो टैलेंट को यूज कर ही नहीं रहे। देन कभी मैंने अभी आपको एग्जांपल दी बाइबल की कि अगर आप देखो, कभी आपने देखा कि वो कभी आप, मैंने बाइबल जो आपने वो उन्होंने कभी देखा है वो कलर की होती है, ग्रीन भी की होती है, ब्लैक भी, पता नहीं सारे हवाले पूछ लो सारा, और जब आप पूछो तो देन डिसीजन मेकिंग में देन यू आर जस्ट वरीड अबाउट इट। देन यू नो, अगर इफ आई हैव टू कंसल्ट समवन, अगर आप में से कोई मेरे पास आए डिसीजन मेकिंग के लिए और आप मुझसे पूछो कि भाई साहब शुड आई डू दिस और नॉट, you know what I will ask you? First question, I'll ask you, what do you think? You should do this or not? What do you think? Would God tell you to do this or not? I tell you 99.9% of the time आपके अंदर आवाज खुद में है। आप मुझे ये बताओगे कि यस मैं अगर खुदावंद पे यकीन रख के चलूं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, तो फिर आप मेरे पास काहे के लिए आए कंसल्टेशन के लिए? आपको तो खुद पता, You see what I'm saying? आपको तो खुद पता है आंसर का, तो फिर मुझसे आप क्यों पूछ रहे हो? Then you know yourself. We will know what God's. So fear और जो खुदावंद की जो will है, it is exactly opposite to the God's will. Joshua chapter number 1:9 it says, क्या मैंने तुझको हुक्म नहीं दिया सो मजबूत हो जा और हौसला रख और खौफ ना खा और बेदिल ना हो, क्योंकि खुदावन तेरा खुदा जहां जहां तू जाए क्या रहेगा? वो तेरे साथ रहेगा। अगर आप इफ यू रियली बिलीव देन खुदावंद आपके साथ है, देन जस्ट मेक वट एवर डिसीजन, एंड इफ यू नो दैट डिसीजन इज अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ गॉड, वट एवर डिसीजन यू मेक, गॉड विल ब्लेस यू फॉर इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। Did I leave my phone? Okay, it's right here.